You're watching Truth versus Hype, the contenders of 2014. We are at a Mayawati rally in Bundelkhand to witness firsthand whether the BSP is going to be the dark horse in this election. Can Mayawati slow down the Narendra Modi juggernaut, or is the carefully put together social coalition that propelled her to power coming apart at the seams? For this moment, the BSP's faithful waited in a Maidan in Jhansi for 2 hours in the afternoon heat. The slogans are of the new inclusive BSP, the crowd for the most part Dalit. A balancing act that is becoming increasingly precarious, worries that even the BSP's core Dalit base, the source of her political leverage, may be slipping. Mayawati is in a dilemma right now because she is also facing another problem. Her Dalit vote is also abandoning her. Apart from the Jatav vote, which is her caste, the Jatavs and to some extent Chamas, others are abandoning BSP. A survey had found that between the 2007 UP Assembly elections and the 2009 Lok Sabha elections, the BSP lost 18% of the Dalit vote. In the 2012 Assembly elections, it won only 15 of the 85 seats reserved for Dalits. Which is why Mayawati's speech is less a call to arms, more a set of dull instructions to her flock. हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में यहाँ सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति भी नहीं होने दी है। अर्थात हमारी सरकार ने जुल्म जाति करने वाले लोगों को या बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ उनकी असली जगह होनी चाहिए। Judging by reactions after the rally, she has little to worry, at least about her core Dalit base, particularly the Jatavs and Ahirwars, the Dalit subcaste loyal to her and who make up the majority of Dalits in UP. जो बहन जी कह रही थी कि कुछ बाकी पार्टी के लोग दलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलित लोग सब बसपा के साथ ही हैं। क्या कुछ दलितों में भी थोड़ा ये मोदी जी का कुछ आकर्षण आ रहा है? मोदी में यहाँ मोदी जी जीरो है, जीरो है मोदी। This may simply not be playing to the gallery. In the villages of Bundelkhand, a brief spell of Samajwadi rule has restored Dalit faith in the BSP. Like Daulatpura, because of its high percentage of Dalits, identified as an Ambedkar village in Mayawati's first term as Chief Minister, which meant it should have received benefits of government schemes on priority. Till today, no benefits have come. बहन जी की जब सरकार थी कुछ काम हुआ यहाँ? कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, पर जैसे आप लोग बहुत यहाँ बहुमूल्य में है ना, आप कहते हैं अहिरवार लोग जो एससी लोग हैं, तो ये तो फिर अंबेडकर ग्राम इसको एक स्थिति दी जानी थी, चाहिए थी, काम होना था, खड़ंजा घर वगैरह वो सब कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। And yet, even here, they are loyal to Mayawati. A BSP rule, even if it offers no economic benefits, offers physical protection. यहाँ किसका वोट पड़ता है आप लोगों का? नहीं, हमारा तो हाथी में पड़ा था बेटा। नहीं, मायावती पे जाता है, यहाँ पे मायावती पे जाता है। हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हाँ, हमें तो बहन जी से मतलब है। बहन जी से मतलब है, क्यों? वो तो हम अपनी अपनी चॉइस है। नहीं, लेकिन बहन जी क्या, किस वजह से? अरे मतलब ये है कि उनकी उसमें ये सुरक्षा है, हर चीज है, मतलब परेशानी आदमी होना पड़ता है, और ये अत्याचार जो हो रहे हैं अभी वो नहीं होते हैं। और जब से सपा आई है, 2 साल हो गए सपा सरकार, क्या कुछ नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कोई अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत आ जाए अगर जाएं तो भगा देते हैं दूर से। In the nearby village of Birgoma, which did receive benefits under the Ambedkar village scheme, the proof of BSP loyalty is more concrete. Ambedkar ग्राम बना ये गांव? हाँ। अच्छा, क्या क्या मिला उसके वजह से?
सब कुछ मिले, आवास मिले, सीसी मिली। कब बना ये? अब जो है कितने साल हो गए? पिछली मायावती सरकार। पिछली मायावती सरकार। हाँ। अच्छा, घर बना, ये खड़ंजा बना सीसी का। हाँ। और कुछ? और बारात घर है, शौचालय है। Here, as in Daulatpura, they are more than willing to overlook Mayawati's excesses. एक चीज बताइए, बहन जी जैसे कहती हैं वो गरीबों की वो है, मसीहा हैं, देखती हैं, लेकिन खुद बहन जी के पास इतने करोड़ों के पैसे हैं, उनकी खुद धन संपत्ति कुछ अब 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो ये गलत बात नहीं है क्या? नहीं, तो हम लोग देते हैं सब चंदा जोड़ कर बहन जी को, वो तो हुई उनके पास। आप लोग जोड़ के? हाँ, देते हैं जन्मदिन पे, बहन जी के जन्मदिन पे देते हैं हम लोग, रसीद कटती हम लोग, रसीद कटा दी थोड़ा सी वो कहीं हुआ दूसरी जगह का पैसा है साहब, हम लोगों को पैसा है, अपना का पैसा अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं बहन जी। खुद आपने दिया है? आप लोगों ने खुद? हाँ, रसीद कटी हम लोगों ने। इसलिए कितना दिया आप? मान लो किसी की सामर्थ 50 रुपए की तो 50 रुपए दे रहा है, जिसकी सामर्थ 100 रुपए की है तो कितना दिया? हमने 50 रुपए दिए थे। आपने? हमने 50 हमने दिए थे। हमने 50 रुपया दिए थे। 50 रुपये 100 रुपये रसीद भी दिखा देंगे। ये क्यों आप देते हैं? मतलब आप पार्टी के लिए थोड़ी बड़ी भी तो होए। हर सब ऐसे मतलब बहन जी के पास कुछ नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगी? हम लोग की लड़ाई वो कैसे लड़ेंगे? ऐसे गरीबों के लिए लड़ रही वो नहीं, लेकिन वो जो पैसा है वो पार्टी में जाता है या बहन जी के पास खुद जाता है? क्योंकि बहन जी ने बड़े बड़े बंगले खरीद लिए हैं पूरे दिल्ली में, आपको तो पता ही होगा, ये तो खबर में आती है। खबर आपको इस बात की खबर नहीं है? नहीं, हमें पता नहीं है। The reference here is to a house in Delhi's Sardar Patel Marg listed in Mayawati's declared assets. Its value cited at 61 crores. ठीक है, बहन जी ने जो चंदा से गरीबों ने दान किया उससे उन्होंने खरीद लिए। और एक समस्या ये भी है इसमें कि जो बहन जी ने आवास बनवाए हैं गरीबों के लिए, आज किसी सरकार ने नहीं बनवाए हैं, इसलिए जनता उनसे खुश है। जैसे हवा चलती है। But is the younger generation of Dalits equally loyal, or are they keen to try out newer options? बहन जी निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, कोई मोदी की हवा नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है मोदी की हवा। ये हमारी वो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी सुनती हैं, हमारे ऊपर ख्याल रखती हैं वो। So the Dalits, at least some of them, appear to be with the BSP. But the same can't be said of Mayawati's other potential partners, Brahmins and Muslims. Her attempt to appease multiple social groups appearing all the more unwieldy in the polarizing climate of elections 2014. On stage at the Jhansi rally is Anuradha Sharma, one of the BSP's 21 Brahmin candidates, more Brahmins than any other party. Sharma is related to S.C. Mishra, Mayawati's key advisor and the architect of the Dalit Brahmin alliance. In her speech, Mayawati goes to the extent of promising reservations for upper caste. यहाँ पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, इसलिए हमारी पार्टी ने पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में भी इन्हें भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है। तो ऐसा नहीं है ब्राह्मणों के दिन में कि बहन जी ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ एक ही जात के पक्ष में। बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 17 अगर आरक्षित सीटें हम निकाल देते हैं तो बची हुई 63 सीट में से 21 सीटें ब्राह्मण समाज को उन्होंने दी है, यानी टोटल का 33%। तो इससे बड़ा तो भाजपा की डुगडुगी बनाने वाले जो ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी सीटें 33% बहन जी ने ब्राह्मणों को दी है तो कैसे ब्राह्मण विरोधी बीएसपी हो सकती है? But away from the rally, Brahmin support is far from assured. In Birgova, in the Brahmin enclave, they say they have tried and abandoned Mayawati. तो जैसे बहन जी हैं, वो भी ब्राह्मणों के लिए काफी कह रही हैं कि नहीं, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, ब्राह्मणों ने इनके लिए खूब ताकत लगाई पहली बार। हाँ, लेकिन जब ऐसा हुआ तो फिर वो अपनी ओर खो। अच्छा, क्यों क्या नहीं किया, मतलब किस वजह से आप लेट डाउन हुए? नहीं, वो क्या नहीं किया, अब हमें तो यही समझ में आई थी, जैसा हमारे गांव में यहाँ हरिजनों की आबादी ज़्यादा है जी, तो सारे लोग उन्हीं को लाभ हर चीज़ की, हम लोगों की कहीं कोई सुनाई नहीं। Their choice is now clear, at least for the national election. मोदी जी का एक चूंकि एबल पर्सन है। In Garhmau village, the Brahmins voice similar sentiments. अपने तो मोदी के बाद
मोदी को देंगे? मोदी को देंगे बिल्कुल। क्यों, क्या लगा अच्छा मोदी में? वो देश को सुधार सकते हैं। आपको भी मोदी? किस वजह से? हर वजह से, गुजरात मॉडल देखो आप, उसी आधार पर हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। It is perhaps sensing the Modi tilt amongst the Brahmins as well as to keep her post-poll options open that Mayawati does not aggressively target Narendra Modi. Her demonstration of the BJP's prime ministerial candidate seems mild even by her own standards. श्री नरेंद्र मोदी का अपनी चुनावी जनसभाओं में बार-बार इस बात को दोहराना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ अपने देश की बिगड़ी हुई हालत को बहुत जल्दी ही सुधार दिया जाएगा, किंतु इस बारे में हमारी पार्टी का इनसे ये कहना है कि जब केंद्र में इस पार्टी ने अपने खुद के नेतृत्व में लगभग 6 वर्षों तक यहाँ सरकार चलाई थी, तो फिर उस समय इन्होंने इस लंबी अवधि में, इन 6 वर्षों की इस लंबी अवधि में यहाँ अपने देश की बिगड़ी हुई हालत को क्यों नहीं सुधार दिया था, जिसकी आज ये लोग बात कर रहे हैं।